جب کتاب کسی کی بھی پبلش ہو کر آتی ہے مارکیٹ کے اندر، چاہے 100 کتابیں چھپے، 1000 کتابیں چھپے یا 1,00,000 کتابیں چھپے، وہ 50 سال کے بعد بھی وہ آتھر کا نام زندہ رہے گا، پبلشر کا نام زندہ رہے گا، اور 100 سال کے بعد بھی وہ اس کی اپنی ایک امیج ہوگی کہ بھائی یہ فلانی ٹائم پہ فلانی آتھر نے لکھی تھی۔ کشمیر لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 30 دنوں میں آپ نے آج کی ملاقات میں 30 آتھر سے بات کی، ان کی بات سنی، ان کی کتابوں کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ آپ تک ہم نے پہنچایا، اور اس آتھر سیریز میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کشمیر کے حوالے سے لکھتے ہیں جو کشمیری نہیں ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اس کڑی میں آج اس کا آخری مرحلہ ہے، آخری قسط ہے، 31واں قسط ہے، تو اس میں آج ہم نے دعوت دی ہے جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے، گلشن بکس۔ یہ ضروری بن جاتا ہے کہ جب آتھرز کے حوالے سے بات کی جائے، پبلشنگ کے حوالے سے بات کی جائے، تو پبلشرز کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے معاملات کے حوالے سے۔ تو آج ان سب باتوں کو ان پر بات کرنے کے لیے ہم نے گلشن بکس کے CEO کو دعوت دی ہے، شیخ اعجاز صاحب۔ اعجاز صاحب آپ کو خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ۔ شروعات اس بات سے کریں گے کہ ہم نے 30 مختلف آتھر سے بات کی، ان میں فکشن رائٹرز تھے، اس میں پوائٹس تھے، اس میں ہسٹورینز تھے، اس میں جو کلچر کے حوالے سے جنہوں نے بات کی ہے، اور ان میں کچھ ایسے آتھر بھی تھے جن کی کتابیں غیر مقامی پبلشرز نے بھی شائع کی ہیں، ان کو بھی ہم نے اس میں لایا تاکہ ایک پراپر ایک پورا ایک ریپرزنٹیٹیو کریکٹر جو اس پروگرام کا تھا وہ رہے گا۔ اس پروگرام کے شروعات میں آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ پبلشنگ کے حوالے سے کوئی کتاب ڈھونڈنے کی تلاش میں ہوتے ہیں تو پریارٹی کس سبجیکٹ کو ہوتی ہے؟ یہ پوئٹری کو ہوتی ہے، فکشن کو ہوتی ہے، ہسٹری کو ہوتی ہے، یا نان فکشن کو ہوتی ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، فرسٹ پریارٹی پہ تو ہم ایسی چیزیں پبلش کرتے ہیں زیادہ تر جو ہسٹوریکل ہو اور جس میں ہسٹوریکل فیکٹس ہو، کیونکہ جب ہمارے پاس کوئی بھی اسکرپٹ پبلش کے لیے آتا ہے، چاہے وہ پوئٹری ہو یا ہسٹوریکل ہو یا نان فکشن ہو، فکشن ہو، جیسا بھی ہو، تو فرسٹ پریارٹی میں ہماری جو ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے، جو ہمارا بالکل 4-5 بندوں کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے، وہ اس اسکرپٹ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا معیار چیک کر لیتے ہیں، اور اس جیسے ہسٹوریکل بک اگر ہو تو اس کی ریفرنسز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کہ آتھر نے اس ٹاپک پہ اگر لکھا ہے تو کتنی محنت ہوئی ہے، وہ آٹومیٹکلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے ریفرنسز وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہی پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کتاب کو ہم پبلش کریں یا نہ کریں۔ تو فرسٹ پریارٹی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آتھر کی جو محنت ہوتی ہے، جتنا بھی ٹائم، مطلب ایسی بھی کتابیں ہیں جن کتابوں کے اندر 10-10 12-12 سال آتھر کو لگے ہیں کتاب لکھنے میں، ایسی کتابیں بھی ہم نے پبلش کی ہیں، اور ایسی کتابیں بھی پبلش کی ہیں جو آتھر صرف 4 مہینے 5 مہینے کے اندر کتاب لکھ لیتا ہے۔ دونوں کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈیٹوریل بورڈ ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کس طرح کا کیا کام ہوا ہے، اور ان کے جو انپٹس آتے ہیں پھر ایز پر دیٹ ہم پھر کام شروع کر لیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر یا اس آتھر کے ساتھ۔ یہ بات درست ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں پبلشنگ کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو کافی طویل ہسٹری ہے، 150 سال سے بھی آگے، مگر اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں کچھ نہ کچھ چھپتا ہی رہتا تھا، چاہے وہ بھلے ہی مینوسکرپٹس چھپے ہوں یا کسی بزرگ کی اپنی کہانی چھپی ہو، لیکن چھپنے کا جو سلسلہ کافی پہلے سے شروع ہے۔ لیکن کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں کہ ہم اس معیار تک ابھی تک پہنچ نہیں پائے ہیں جس معیار تک پلینز میں ہم بڑے پبلشرز دیکھتے ہیں؟ حالانکہ ان کی بھی اپنی ہسٹری ہے، لیکن کچھ پبلشرز تو 10-15 سال میں ایک معیار تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے کہ ہماری ڈیموگرافی چھوٹی ہے، بہت کم لوگ ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، ایکچوئل کیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ فیسلٹی کی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اس وقت، اور یہ بھی کوئی مطلب کچھ سال ہی ہوئے اس کو ایجاد کیے ہوئے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ جو اس سے پہلے کی بات اگر ہم کریں، اگر ہم دلی کے اندر پبلشر ہیں یا بامبے میں ہے یا ہندوستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے ان کا آنا جانا رہتا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ اور دوسری وجہ فیسلٹی کی بات اگر ہم کریں، جیسے ابھی ہم کتابیں پبلش کر رہے ہیں، یا اس سے 10 سال پہلے جو ہم کتابیں پبلش کر رہے ہیں، 10 سال پہلے بھی ہم دلی میں ہی کتابیں پبلش کرتے تھے، اور آج بھی ہم دلی کے اندر ہی کتابیں پبلش کرتے ہیں۔ تو جو فیسلٹی ہمیں دلی میں ملتی ہے وہ فیسلٹی ہمیں کشمیر کے اندر نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے لائٹ کی پرابلم ہے یہاں پہ،
मौसम का है एक, क्योंकि पब्लिशिंग में मतलब जैसे किताब पब्लिश होती है इसके लिए हीट चाहिए, तो वो हम सर्दियों में कर नहीं पाते हैं। दूसरी जो चीजें हैं जैसे रॉ मटेरियल है हमारा, तो अभी कुछ सालों से जो जीएसटी का हो गया शुरू, दिल्ली में हम जब ये रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं वहां भी हमें जीएसटी देना पड़ता है, और अगर श्रीनगर के लिए हम यही चीज खरीदेंगे, एक तो हमें दिल्ली का जीएसटी देना है और ऊपर से श्रीनगर कश्मीर का जीएसटी देना है, और ऊपर से जो किराया लगता है रॉ मटेरियल को वो अलग से देना है। तो हमें जो चीपेस्ट बैठता है वो दिल्ली में ही बैठता है। तो बेटर है कि हम प्रेफर कर लेते हैं कि यहाँ जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है यहाँ ना खोले, बेटर हमारे लिए दिल्ली है। आउटसोर्स करते हैं आप कुछ चीजें? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो इन चीजों को फिर हम दिल्ली, मुंबई में या हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में वहीं से पब्लिश करके लाते हैं। और अगर हम यहाँ पे ये चीजें करें, जो चीज हमें मतलब मान लीजिए कि मोर देन कम से कम 25% रॉ मटेरियल के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा अगर हम कश्मीर के अंदर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो क्वालिटी प्रोडक्शन जो है वो हमें कश्मीर के अंदर उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना हमें बाहर मिल रहा है। कश्मीर में किताबों की इशाअत व फरोख्त का एक मोतबर इदारा गुलशन बुक्स 1932 से मैदान अमल में। कश्मीर की तारीख हो या जग्राफिया, तहजीब हो या तमद्दुन, कहानी हो या तमसील, तसव्वुफ हो या तशख़्ख़ुस, इदारा एक ही है जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। लेकिन एक दूसरी चीज भी है इसमें, इसका एक तो ये तो आप तबाद की बात करते हैं, छापने की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। फॉर इंस्टेंस जब ये मैन्युस्क्रिप्ट आता है तो उसके लिए बेहतर डिजाइनिंग की जरूरत होती है। या आजकल हम जिस दौर में गुजर रहे हैं वहाँ आपको आज डिजिटल कॉपीज का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो क्या हम उस सिलसिले में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, उस सिलसिले में तो हम सारा श्रीनगर में ही कर रहे हैं। हमारी कंपनी जो है वो जैसे कि हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट आ गया है, सिलेक्ट हो गया, उसके बाद पहली किताब जो है एडिटिंग में जाती है जिसमें ग्रामर ठीक हो जाता है किताब का, या रेफरेंसेस नहीं होती हैं वो हम ऑथर से कांटेक्ट करके वो रेफरेंसेस उन जगहों पे डाल लेते हैं। और उसके बाद जो है जब हमारे पास एडिटिंग के बाद स्क्रिप्ट आता है उसके बाद वो डिजाइनिंग में चला जाता है, और डिजाइनिंग कंप्लीट करके जितना भी ये प्रोडक्शन का मामला है, जब किताब छपती है वो दिल्ली में छपती है, बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे कश्मीर के अंदर ही होते हैं। तो ये जो डिजिटल की दुनिया है उसमें कुछ कोशिश हो गई हमारी तरफ से या नहीं हुई अभी तक? हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन उतनी भी नहीं हुई है कि जितना बाहर है अभी। मतलब हमारे यहाँ तो अब मुल्क में एक पब्लिशर ऐसा है वो सिर्फ डिजिटल कुछ किताबें डिजिटली छापता है, बिल्कुल, वो प्रिंट करता ही नहीं है। बिल्कुल, ऐसा भी एक पब्लिशर है? एक नहीं, बहुत सारे हैं। अच्छा, आप इंटरनेट पे देख लीजिए, बहुत सारे पब्लिशर ऐसे हैं कि जो जैसे मेल डालेंगे आपकी भाई मुझे ये किताब पब्लिश करनी है, कितनी कॉपी आपको 30, 50, 40, 20 जो भी करना होगा वो आपको बता देंगे कि इतनी पेमेंट आप भर दीजिए और वो आपको किताब 20-30। उनका कोई ऐसा रोल नहीं है इसमें एडिटिंग का, डिजाइनिंग का, वो कुछ ऐसा नहीं है। नॉर्मल किताब जैसे होती है कि मतलब आपने किताब भेजी 50 पेज की, 100 पेज की, वो आपको 50, 30, 20 जितनी भी आपको चाहिए वो आपको प्रिंट करके दे देंगे, आपसे पैसे उतना ले लेंगे, चार्ज करेंगे जितना भी आपको क्वांटिटी पब्लिश करनी होती है। लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो एक पब्लिशिंग कंपनी में होता है, क्योंकि पब्लिशिंग कंपनी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट आया पब्लिश करने के लिए, हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी होती है, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक नाम भी होता है पब्लिशर का, तो ये सारी चीज़ें देख के ही किताब को पब्लिश कर लेता है। तो सेल्फ पब्लिकेशन में इस तरह का कुछ नहीं है कि उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एक तो किताब कर लेते हैं और उसके बाद ISBN जो होता है वो देते हैं आपको और बारकोड देते हैं, बस, और कुछ नहीं। बाकी आप किताब के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा है, चाहे किस मियार का लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, उसके साथ उनको कोई लेना देना नहीं। ये कश्मीर में सेल्फ पब्लिशिंग बहुत हो रहा है, इसकी वजह क्या है? नहीं, ये अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा पहले तो था नहीं। बहुत सारे क्योंकि टैलेंट है हमारे बच्चों में बहुत अच्छा। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि जो हमारे बच्चों के जम्मू कश्मीर लद्दाख के बच्चों में टैलेंट है बहुत ही, अगर हमें फैसिलिटीज मिले माशाल्लाह हम आसमान छू लेंगे। टैलेंट है हमारे बच्चों में, तो इस वजह से जो है, क्योंकि पब्लिशर ऐसी चीजें तो छापेगा नहीं कि जिसमें उसको, मैंने अभी बताया आपको कि सारी चीजें हमें देखनी होती है। तो सेल्फ पब्लिकेशन में ये है कि उन्होंने पैसे दे दिए कुछ और 20 किताबें 30 किताबें किताब पब्लिश की और अपने फ्रेंड सर्कल में बांटी या दूसरी जगहों पे दे दी, तो एक हौसला मिलता है उससे बच्चे को कि नहीं मेरी किताब पब्लिश आ गई। अगर उसमें कोई गलती रही है या कुछ ऐसा रहा है तो सीख जाता है। जब दूसरी किताब वो पब्लिश कर लेता है वो कमियां खत्म कर लेता है उसमें। जो पहली किताब के अंदर जो कमियां उसको दिखती हैं
وہ آٹومیٹکلی اس کو نظر آتا ہے. بڑے بڑے آتھرز دیکھ لیجیے, بہت سارے آتھرز ایسے ہیں کہ جیسے ہم کتاب پبلش کر لیتے ہیں, چاہے وہ ہسٹوریکل ہو, فکشن ہو, نان فکشن ہو, فرسٹ ایڈیشن جب ہم پبلش کر لیتے ہیں, پھر آتے ہیں ہمارے نیکسٹ ایڈیشن میں ہمیں یہ کمی آ رہی ہے اس چیز میں, ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو دوسرے ایڈیشن میں وہ چیزیں ہم کتابوں میں ٹھیک کر لیتے ہیں, اور دوسرے ایڈیشن میں وہ پھر وہ کمیاں نہیں رہتی ہے. تو اسی طرح ان بچوں کو بھی ایک حوصلہ مل جاتا ہے سیلف پبلیکیشن میں, اور دوسرے کتاب جب یہ چھاپتے ہیں تو وہ کمیاں ان کی ساری دور ہو جاتی ہے. لیکن میں نے بہت سارے آتھر سے بات کی, وہ بھی سیلف پبلش کرتے ہیں. ہاں بہت سارے ہیں. معاملہ ہے کہ جب آپ سیلف پبلش کوئی بک کرتے ہیں تو اس کی قدر قیمت ایک فارمل پبلشر کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے, ہر ایک چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. کئی کتابیں ایسی ہیں جن کو مینوسکرپٹ فائنلائز کرنے کے بعد بھی 1-2 سال لگے, کراس چیک میں, ایڈیٹنگ میں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں؟ دیکھیے اس کی دو وجہ ہیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آتھر اور پبلشر کے بیچ ایک رابطہ ہو جاتا ہے اور بات نہیں بن پاتی ہے کتاب پبلش کرنے کی, پبلشر اور آتھر کے بیچ میں, کیونکہ آتھر کے اپنے آتھر کو تو سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ پبلشر کے پاس آتا ہے کتاب مجھے پبلش کرنی ہے, تو اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے 1-1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر کتاب چاہیے پبلش کر کے. لیکن پبلشر کے بھی اپنی کچھ ٹائم لگ جاتا ہے کہ ان کے پبلشر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کی مارکیٹنگ دیکھنی ہوتی ہے, اس کا جو بھی اپنا پروسیجر ہے وہ چیزیں ساری دیکھ کے. تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب پبلشر کے پاس جب آتی ہے چھپنے کے لیے تو 1 سال بھی لگ جاتا ہے کتاب چھپنے کو, 1.5 سال بھی لگ جاتا ہے کتاب چھپنے کو, 3 سال لگتے ہیں کتاب میں, 2 سال بھی لگتے ہیں, کیونکہ وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہی کتاب کو پبلش کر لیتا ہے. کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ یوٗتاہ چھُنہٕ آسان آتھرَس کینٛہہ کہ سُہ پیارِ ؤری, سُہ پیارِ 2 سال 1.5 سال انتظار کرے اس چیز کا, تو وہ خود ہی پھر پبلش کر لیتے ہیں. اور رہا سوال, جیسے اگر ایک پبلشر کتاب کو پبلش کر لیتا ہے, مان لیجئے کہ اگر 1000 روپے اس کی پرائس ہے اور وہی کتاب اگر آتھر خود کرے پبلش تو وہ 600 ہی اس کتاب کا پرائس رکھتا ہے. پبلشر کی بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے, جیسے ایڈورٹائزمنٹ پہ اس کو پیسہ خرچنا ہے, ایک بار اس کو پبلش کرنی ہے کتاب, اور یہ کتاب کتنے ٹائم میں نکلے, تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہے. وہ آتھر کے پاس تو آتھر کو تو بس اتنا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب پبلش کی, وہ ہر جگہ جا سکتا ہے کہ بھائی میں نے کتاب پبلش کی, آپ خریدیے, جیسے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے. تو پبلشر یہ چیزیں تو کرتا نہیں ہے. پبلشر نے کتاب چھاپی, تھرو میل, تھرو جو بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی آج کل ہے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ کیا, اس کے بعد پھر امیزون وغیرہ جو بھی ہے, تو دھیرے دھیرے کتاب نکلتی ہے پبلشر کے پاس. اور پبلشر کے ایکسپینسز بھی آتھر کا تو کوئی ایکسپینس ہوتا ہی نہیں ہے لکھنے کے بغیر. اور باقی جو پبلشر ہے, پبلشر کے تو بہت سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس میں, تو اور کوالٹی مینٹین کر لیتا ہے پبلشر. آتھر تو کوالٹی مینٹین اتنی نہیں کرتے ہیں. کچھ آتھر ایسے بھی ہیں جو کر لیتے ہیں کوالٹی مینٹین میں, لیکن آلموسٹ 80% تو ایسے بس کتاب انہوں نے بیچ دی اور کتاب چھپ کے آ گئی اور کام ہو گیا. دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک بڑا ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی آتھر جو شوق کی وجہ سے لکھتے ہیں, انہیں پیسے کی امپورٹنس مطلب اس میں دکھتی نہیں, بالکل شاید ان کو لگتا بھی نہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ ان کی کتاب اگر چھپے اور کوئی بزنس وہ کر پائے تو اس میں ان کا بھی حصہ ہو. ایسا کوئی سسٹم ہے ہمارے یہاں پبلشنگ سیکٹر میں؟ بالکل ہاں, ہمارے یہاں بالکل ایسا سسٹم ہے. ہم رائلٹی دیتے ہیں آتھر کو. تو 2 طرح کی رائلٹی ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہم آتھر کو دیتے ہیں, یا تو پرسنٹیج کے حساب سے ہوتی ہے یا پھر لمسم کے حساب سے. جیسے لمسم میں ہم نے آپ کو اتنے پیسے دے دیے, آپ سے اسکرپٹ لے لیا, تو کہانی ادھر ہی ختم. باقی پھر کتاب بکے یا نہ بکے وہ پبلشر کے اوپر ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ پرائس جو کتاب کے اوپر ہوتی ہے اس پہ ہم رائلٹی دیتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے. جیسے آپ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا 5%, 10%, جو بھی جیسا بھی ہے, تو اس کے بعد جیسے جیسے کتاب بکتی ہے اتنی رائلٹی آتھر کو ملتی رہتی ہے. تو اس طرح 2 سسٹم ہوتے ہیں ہر ایک پبلشر کے پاس, ایسے ہمارے پاس ہی نہیں. یا آپ تھرو آؤٹ انڈیا میں دیکھ لیجیے. تو ایک چیز مجھے بتا دیجیے گا اعجاز صاحب, یہ بیسیکلی کشمیر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر بہت کام ہو رہا ہے, اور کشمیر میں تھوڑا سا کام ہو رہا ہے. کشمیر پہ جو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے اکیڈمکس کے حساب سے, ہسٹری کے حساب سے, وہ کشمیر سے باہر ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جی. لیکن کیا معاملہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چھپ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے جو کتابیں چھپ رہی ہیں وہ ساری اویلیبل نہیں رہتی ہیں کشمیر میں. آپ تو اپنی پبلیکیشن تو رکھ ہی لیتے ہیں, حالانکہ آؤٹ آف اسٹاک تو ہو ہی جاتی ہیں, وہ مسئلہ اپنی جگہ. لیکن جو باہر والے پبلشرز کی کتابیں ہیں, آپ کی 2 طرح کا ایکٹیویٹی ہے. ایک یہ کہ آپ خود ایک پبلشر ہیں, دوسرا یہ کہ آپ بک سیلر بھی ہیں. جی بالکل. تو بک سیلر میں جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں وہ باہر والی جو کتابیں ہیں وہ ساری اویلیبل نہیں ہوتی. وہ تو چلتا رہتا ہے, وہ سرکل ایک سمجھ لیجیے آپ, کیونکہ ہماری جو اپنی پروڈکشن ہے, مان لیجیے کہ
हमारी 500 टाइटल है या 1000 टाइटल है, वो तो अवेलेबल रहता ही एज अ पब्लिशर, और रखना भी पड़ता है वो हमें अवेलेबल। और रहा सवाल अब बुक सेलर का, जो बाहर की किताबें, बाहर जो किताबें छपती है वो हमारे पास हर टाइम अवेलेबल नहीं होती है, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वो लार्जेस्ट स्केल पे है। अगर हम उन किताबों को एक साथ अवेलेबल रखे नहीं बेचेंगे तो हमारी दुकान में बस बाहर की किताबें ही रहेगी, अपना कुछ नहीं रहेगा, और फिर हमें कुछ बेचना भी नहीं है। क्योंकि अब देख लीजिए, जैसे पेंगुइन कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहां से किताबें आती है हमारे पास जो कश्मीर पे छपती है। अगर उनकी किताबें 5 किताबें साल के अंदर कश्मीर के ऊपर छपती है, वो 3 महीने में ही आउट ऑफ प्रिंट हो जाती है उनके पास। फिर रेगुलर वो उनकी रिप्रिंट छपती रहती है, हमारे पास किताब आती रहती है, आउट ऑफ स्टॉक भी रहती है, अवेलेबल भी रहती है, इस तरह चलता रहता है ये सिलसिला। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक किताब हर टाइम पे अवेलेबल रखें, दैट इज नॉट पॉसिबल कि ये मतलब नहीं रख सकते हम कोई भी, ये हमारी बात नहीं है। कश्मीर के अंदर या कश्मीर से बाहर किसी भी जगह किसी भी टॉपिक पे हमेशा अवेलेबल नहीं रख सकते हैं किताबें एक ही टॉपिक के ऊपर, तो ये मतलब चलता रहता है। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि अब एक ही कंपनी की किताबें तो है नहीं कि चलो बाहर से एक कंपनी के साथ कांटेक्ट किया, यार नहीं इस पे आप काम कीजिए, ये किताबें हमें दे दीजिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम ढूंढने लगेंगे तो हजारों पब्लिशर ऐसे निकलेंगे जिन्होंने कश्मीर के ऊपर किताबें छापी है, तो इतने पब्लिशरों के साथ राब्ता करना तो पॉसिबल नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आती हैं किताबें, होलसेलर के थ्रू किताबें आती है, पब्लिशर के थ्रू किताबें आती रहती है, लेकिन हम बस इतनी सी कोशिश रहती है हमारी कि भाई कश्मीर के ऊपर है, स्पेशली हमारे पास रहनी चाहिए किताब। लेकिन जब भी सिलसिला चलता रहता है, पॉसिबल नहीं है कि एक साथ हम सारी किताबें अवेलेबल रखें। कश्मीर के बारे में हमेशा से 2 चीजें हमेशा कही गई हैं, एक ये कि कश्मीर के बारे में हमेशा लिखा गया है, दूसरा एक कि कश्मीर में सबसे कम लोग किताबें पढ़ते हैं। अब इन 2 चीजों के बीच में आपका सर्वाइवल कैसे हो रहा है? नहीं, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, हम कश्मीर में अच्छे लोग पढ़ रहे हैं एज पर पॉपुलेशन के हिसाब से। अब देख लीजिए, अगर किसी दूसरे शहर की, हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर की हम बात करें एज पर पॉपुलेशन, वहां पे तो देखेंगे तो हमारा ही सेंसस ज्यादा निकलेगा कि कश्मीर की, कश्मीर में ज्यादा लोग पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, एज पर पॉपुलेशन में कह रहा हूँ। अच्छा। अगर 1 करोड़ किसी शहर की पॉपुलेशन है तो वहां पे आप देखेंगे 2% 3% लोग पढ़ रहे हैं। और अगर हम देखेंगे कश्मीर में 40 लाख पॉपुलेशन है या 50 लाख पॉपुलेशन है, 50 लाख में से कम 3% पढ़ लेते हैं, 5% पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कि कश्मीर में पढ़ा नहीं जाता। नहीं, कश्मीर के अंदर बहुत पढ़ा जाता है, और माशाल्लाह आजकल का जो यूथ है इनको भी काफी इंटरेस्ट है, ये भी बहुत पढ़ते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है इनको, और माशाल्लाह ये सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। कश्मीर में आप तो लीडिंग पब्लिशर हैं, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आपके अलावा भी बहुत सारे कुछ पब्लिश भी कर रहे हैं, कुछ किताबें भी बेच रहे हैं, मतलब क्योंकि कश्मीर एक बड़ी सोसाइटी है, उस ऐसे ही नहीं है, हमेशा होता आ रहा है। लेकिन आप चूंकि मैक्सिमम किताबें छापते भी हैं और बेचते भी हैं, थोड़ा हमें बता दीजिएगा कि पिछले कई बरस में, चलो शुरुआत इस बात से कर लेंगे, इस वक्त अगर हम देखेंगे कश्मीर में कौन सी बेहतर किताब चल रही है? अभी हमारी एक किताब आई खालिद बशीर साहब की, तो बेस्ट सेलिंग में किताब जा रही है माशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और बहुत अच्छी किताब चली। खालिद साहब की किताब अभी नहीं आई, रिलिक के हवाले से। बिल्कुल जी हाँ, वो बेस्ट सेलिंग में किताब जा रही है अभी। अच्छा, हाँ, तो मोस्टली इंडिविजुअल्स पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल। हर साल जो मेरा अंदाजा है, क्योंकि वी आर इन टच विथ ऑल पब्लिशर्स अक्रॉस वर्ल्ड जो कश्मीर पर कुछ छापते हैं, हमें किताब कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, ठीक है। तो बाय एन एवरेज कश्मीर पर हर साल कश्मीर से बाहर 20 से 25 किताबें छपती हैं, बिल्कुल बाय एन एवरेज। तो लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा नाजरीन के लिए कि पिछले 10 साल 20 साल में मतलब हमारी कौन कौन सी किताब बेस्ट सेलर रही है? बहुत सारी किताबें हैं हमारी। बशारत पीर साहब की तो बहुत ही अच्छी किताब चली, बेस्ट सेलिंग में चली, और जब भी किताब हमारे पास आती है तो बस अगर 30 20 50 किताबें आ गई हमारे पास तो 15-20 दिन के अंदर किताब जो है वो खत्म हो जाती है। अब भी चलती है? जी बिल्कुल, हाँ, अभी भी चलती है। वहीद साहब की किताब है, वहीद मिर्जा की किताब है, उनकी बहुत अच्छी किताब चली, और वो नावल कोलैबोरेटर दोनों किताबें उनकी, गोल्डन डेविस भी और कोलैबोरेटर जो है उनकी, वो भी अच्छी चली। तो बहुत अच्छी किताबें माशाल्लाह बेस्ट सेलिंग में कश्मीर के में बहुत किताबें अच्छी चल रही है। तो कोई नॉन लोकल जिसने, जो यहाँ मुकामी ऑथर ना हो, बाहर से जिसने लिखा हो, उसकी कोई किताब चली अभी रिसेंटली? हाँ बिल्कुल, क्रिस्टोफर सिनेडन की किताब जो है उनकी बहुत अच्छी किताबें चली। यहाँ पे एक किताब आई थी मेडो ऑथर का, मुझे याद, हाँ, वो एंड्रू लेवी, हाँ, उनकी किताब बहुत अच्छी चली। अच्छा, कश्मीर पे विक्टोरिया शफील्ड की किताबें, उनकी किताबें बहुत अच्छी किताबें चली, जो इंडिया से बाहर, जो जिनके मैंने नाम बताई इंडिया के बाहर से हैं सारे, और माशाल्लाह इंडिया के ऑथर भी जो है वो भी अच्छी किताबें चली। ये बेस्ट सेलिंग में किताबें जा रही हैं सारी, और इस वक्त बहुत कम किताबें आ रही हैं बाहर से, क्योंकि
अभी डिजिटलाइज सारा हो गया, तो लेकिन आती रहती हैं किताबें, जैसी किताब हमारे पास आती है। अभी इनकी एक 2 साल पहले शैला जी है एक, उनकी भी एक किताब आई थी कश्मीर के ऊपर, कश्मीर आफ्टर कुछ ऐसे करके थी किताब, वो भी बहुत अच्छी चली। तो ये मुझे बता दीजिएगा एजाज साहब, कश्मीर में कई ज़बानें चल रही हैं जी, तो हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन ज़बानों की बात कर रहे हैं जो लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। एक ज़माने में पर्शियन था, संस्कृत था, अब खैर वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी 3 ज़बानें बड़ी इंपॉर्टेंट है कश्मीर के हवाले से। एक है कश्मीरी जो हमारी मादरी ज़बान है, उसके बाद उर्दू है जिसमें हमारी तारीख है, हमारे मज़हब के हवाले से चीज़ें हैं, फिर अंग्रेज़ी है जो ग्लोबल लैंग्वेज है। जी। तो इन 3 लैंग्वेजेस में से कौन सी लैंग्वेज बेहतर चल रही है अगर किताबों के हवाले से बात करें तो? किताबों के हवाले से अगर बात करेंगे, अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो फिर इंग्लिश की होती है, नंबर 1 पे इंग्लिश किताबें चलती है। लेकिन अगर अपनी सोसाइटी की बात करें हम जम्मू कश्मीर, तो फिर उर्दू, और 3rd पे ले लीजिए आप कश्मीरी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट जो है फर्स्ट इंग्लिश। अगर हम पूरे पब्लिशिंग सेक्टर को थोड़ा, हम इसको क्वांटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि इसका टर्नओवर इतना है, लेकिन अगर हम नज़र दौड़ाएं ऊपर, वो जो पूरा इकोसिस्टम है पब्लिशिंग का, उसमें इन 3 ज़बानों में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज की। मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। टेक्स्ट एक तो हो गया अपना ये स्कूलों की किताबें वगैरह, ये तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो अलग एक टॉपिक है, तो इस पे तो एक एपिसोड अलग सा बन जाएगा। लेकिन जो जनरल बात हम कर रहे हैं तो इंग्लिश देख लीजिए, कोई भी कॉलेज देख लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, डिपार्टमेंट्स खुद, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात अगर हम करेंगे तो डिपार्टमेंट्स देख लीजिए कितने हैं, और कश्मीरी डिपार्टमेंट एक है, उर्दू डिपार्टमेंट एक है। और इंग्लिश को अगर हम देखेंगे दूसरी लैंग्वेज से जहाँ पे कश्मीर की किताबें चलती हैं और लगती हैं, जैसे मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, वहाँ भी है, पॉलिटिकल साइंस है, सेंट्रल एशियन स्टडीज़ है, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट है, कश्मीर स्टडीज सेंटर है, उर्दू डिपार्टमेंट है। तो इस तरह करके 8 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो रिलेटेड टू कश्मीर बुक्स परचेज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जबकि ज़्यादातर किताबें इंग्लिश लैंग्वेज में ही आती है। तो ये 8 डिपार्टमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में किताबें परचेज करते हैं। और उर्दू और कश्मीरी की बात अगर हम करते हैं, ये सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट वहाँ पे परचेज करते हैं। उर्दू का तो अपना उर्दू है और कश्मीरी का अपना कश्मीरी। लेकिन मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी में आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि 8 लोग जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, मान लीजिए कि 8 लोग जो है वो अंग्रेजी में किताब परचेज कर रहे हैं, और उर्दू में एक बंदा करता है और कश्मीरी में। और यही सिचुएशन आप ले लीजिए यूनिवर्सिटी से बाहर, जनरल पब्लिक की बात अगर हम करें, जनरल पब्लिक की बात अगर हम करें कि 8 लोग अंग्रेजी में किताबें परचेज कर लेते हैं, 2 बंदे आपको मिलेंगे जो कश्मीरी में करेंगे, और 3 बंदे ऐसे मिलेंगे जो उर्दू में करेंगे। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उर्दू ज़बान अब भी ज़्यादा पढ़ी जाती है। हाँ बिल्कुल, तो शायद, लेकिन सेकंड स्टेप पे, नॉट फर्स्ट स्टेप पे आप अंग्रेजी को रखिए, सेकंड स्टेप पे उर्दू लैंग्वेज को जो है पढ़ा जाता है, क्योंकि हम इस चीज के साथ डील करते हैं। ऑब्वियसली आपका, क्योंकि हमारे पास, अच्छा देख लीजिए, इस बार हमने मोर देन 83 टाइटल्स के आसपास जो है वो कश्मीरी लैंग्वेज में पब्लिश किए। आपने? जी बिल्कुल, हाँ इस साल? हाँ जी, 83 टाइटल्स? जी बिल्कुल, सिर्फ ये कश्मीरी लैंग्वेज में। जो खत्म हो चुका था हमारे पास एक सरमाया है जिसको हम कहें, जो कुलियात यहाँ के शायर गुजरे हैं, मार्केट में के अंदर अवेलेबल नहीं थी वो चीज़ें। पिछले 12 साल से हम काम कर रहे थे उस टॉपिक पे, और अल्लाह ताला के फजल से 2024 में अगस्त में हमने वो किताबें लॉन्च की, जो यहाँ पे SKSCC में एक बुक एग्जिबिशन हुई थी, तो वहीं पे हमने उन 83 किताबों को लॉन्च किया, जिसमें कश्मीर के बहुत बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। तो वो किताबें बिल्कुल आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी 10-10, 12-12, 15-15 सालों से। जैसे अजरगर साहब है, न्याम साहब है, शम्स फकीर है, सचक्राल साहब जो ललार गामी है, इस तरह करके रहमान भट्ट साहब हैं जो इनकी शायरी है, इस तरह करके हमने 83 टाइटल्स पब्लिश किए। तो आपने इस साल कितनी किताबें पब्लिश की? इस साल हमने मोर देन 100 किताबें आसपास। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमने इस साल इसलिए कश्मीरी को दी, इस टॉपिक के ऊपर हम 12 साल से, एक तो 12 साल से काम कर रहे थे, और दूसरी बात यह है कि ये मतलब स्पेशली एक इन किताबों को हमें पब्लिश करना है, बिकॉज ऑफ कि ये ख़त्म हो चुकी है। नहीं तो इतनी किताबें हम कश्मीरी लैंग्वेज में पब्लिश नहीं करते हैं कभी भी। हाँ, आती हैं साल के अंदर 2 किताबें, 4 किताबें, 5 किताबें, वो चलता रहता है। अगर कश्मीरी की 4-5 किताबें एक साल के अंदर हम पब्लिश करते हैं, तो उर्दू की उसके
डबल कर लेते हैं. अगर इस साल हमने कश्मीरी में 5 किताबें की, उर्दू की हम 9, 10, 11, 12 कर, और अंग्रेजी की तो ऑलमोस्ट 30, 35, 40 किताबें तो हमारी आती रहती है. अभी हमारा एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें अंग्रेजी की कम से कम 125 किताबें हमारी पब्लिश हो रही है. आपका फोकस कश्मीर ही रहता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ. कश्मीरी हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, टूरिज्म, जितने भी एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे रिलेटेड टू कश्मीर जो मूलतः. नई जनरेशन जो है उनके दो कंसर्न्स होते हैं. एक कंसर्न ये होता है कि किताबें बड़ी महंगी हो गई है, बिल्कुल. इससे बेहतर है कि इंटरनेट से कहीं से चोरी करके किताब लिया जाए और पढ़ी जाए. मतलब ये ऑप्शन बन जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरा ये कि बहुत सारे लोग किताब लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके साथ इस सेक्टर में कुछ एनकरेजमेंट नहीं है. तो क्या कहेंगे इन दो सवालों के जवाब में? देखिए, पहले तो मैं कहूँ प्राइस के बारे में. जो आपने प्राइस के बारे में हमसे कहा कि प्राइस किताबों की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये कश्मीर के अंदर ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर किताबों की प्राइस जो है वो अप होती जा रही है. नंबर एक, इसकी वजूहत कुछ इस तरह की है कि प्रिंट रन दिन ब दिन कम होता जा रहा है किताबों का, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि किताब को तो अपना एक मकाम है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसके टक्कर में है. तो इस वजह से जो है वो किताबों की प्राइस हाई होती जा रही है. तो बच्चे जो है, यूथ जो है, वो परचेज नहीं कर पाते हैं नॉर्मली किताब को. अगर 10 बच्चे किताब देखने के लिए आते हैं तो एक बच्चा किताब परचेज कर लेता है, 9 बच्चे जो है वो उधर ही रख लेते हैं. इसमें थोड़ा सा रोल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी होना चाहिए, वो मुझे लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है. जैसे यहाँ पे हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, डायरेक्टरेट लाइब्रेरीज है, ये बुक्स परचेज कर लेते हैं, इनकी अपनी लाइब्रेरीज है पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील लाइब्रेरीज हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इनमें, लेकिन नहीं रख पाते हैं कलेक्शन, क्योंकि इनके अपने कुछ बायलाज हैं. इस वजह से ये किताब खरीद नहीं पाते हैं सारी. इनको भी थोड़ी सी नजरसानी इस पे करनी चाहिए ताकि यहाँ के यूथ को किताबें मिल सकें सारी. जो बच्चे चाहते हैं कि किताब लिखें या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस सेक्टर में रिटर्न्स नहीं है, बहुत कम और एनकरेजमेंट नहीं है. नहीं ऐसी मतलब अब आपके पास 50 लोग आ जाएंगे, आपको उसके लिए भी वक्त चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको जो बताएगा कि 50 में से 4 चीजें आपको लेनी है, कैसे ले लेंगे? बिल्कुल, वो भी बड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है ना. बिल्कुल, तो इसका क्या किया जाए? के लिए देखिए, हम तो अपना रोल निभा रहे हैं, जहां तक हमारा हो सके हम अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ पब्लिकेशन भी जो आ रही है माशाल्लाह, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जो ये ऑथर्स बचे हैं, तो वो भी अपना रोल निभा रही है. तो इस तरह चलता है. बाकी रहा इनपुट इसमें बहुत कम है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. लेकिन एक चीज है कि नाम जिंदा रहता है. जब किताब किसी की भी पब्लिश होकर आती है मार्केट के अंदर, चाहे 100 किताबें छपे, 1000 किताबें छपे या 1 लाख किताबें छपे, वो 50 साल के बाद भी वो ऑथर का नाम जिंदा रहेगा, पब्लिशर का नाम जिंदा रहेगा, और 100 साल के बाद भी वो उसकी अपनी एक इमेज होगी कि भाई ये फलानी टाइम पे फलानी ऑथर ने लिखी थी. जो हम आज देख रहे हैं, कोई भी किताब आप पुरानी ले लीजिए, अभी भी वेल्टर लॉरेंस को मुझे नहीं लग रहा है कि कश्मीर का बच्चा जानता होगा. वेल्टर लॉरेंस या राजतरनी कल्हना की है, कल्हन को राजतरनी के नाम से ही जानते हैं. अगर कल्हन ने राजतरनी नहीं लिखी होती तो आज कल्हन को कोई नहीं जानता. लॉरेंस साहब ने अगर वैली ऑफ कश्मीर नहीं लिखी होती तो लॉरेंस साहब को तो कोई नहीं जानता. या बिस्को साहब है, हमारे स्कूल की वजह से भी एक नाम है उनका, लेकिन जो उन्होंने कश्मीर के ऊपर काम किया है, वो काम हम जब आज देखते हैं तो बिल्कुल हैरान रहते हैं कि मतलब किस पीरियड में उन्होंने किस तरह से कश्मीर में एजुकेशन लाई और किस तरह से इस एजुकेशन को उन्होंने डेवलप किया कश्मीर के अंदर. तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हुई कि जब हमारे पास कुछ मटेरियल है, जब टेबल पर हमारे पास किताबें हैं, तब जाके हम इन लोगों को जानते हैं. तो ये चीज़ रह जाती है. हर एक सोसाइटी की एक खूबी, एक खामी है, लेकिन सब सोसाइटीज में एक चीज बड़ी कॉमन है, सब लोग दास्तानें सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, चाहे वो फोक हो, कुछ भी हो. एक जमाने में 1000 दास्तान एक जबरदस्त किताब थी जो चलती थी. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन अब हम दास्तानों के नाम पर क्या पढ़ते हैं? क्योंकि आप तो किताब बेचते हैं, आपको पता होगी. नहीं, आजकल हमारे बच्चे जो है वो फोक टेल्स, दास्तान तो वो भी है. हाँ. हम उर्दू में बात करें, कश्मीरी में बात करें तो मीनिंग तो वही आ जाएगा, दास्तान. तो आजकल फोक टेल्स के नाम से हम उन चीज़ों को जानते हैं. जो हमारे बच्चे हैं आजकल के, तो वो दास्तान नहीं बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे स्टोरी बुक दे दीजिए जो रिलेटेड टू कश्मीर हो, या मुझे कोई फोक टेल्स दे दीजिए जिसमें कश्मीर रिलेटेड फोक टेल्स हो. तो खैर वो तो वही चीजें है. कोई फॉरेन कहानियों की दास्तान जो यहाँ ज्यादा पढ़ी जा रही हो? नहीं, हाँ, बहुत सारी किताबें ऐसी है. अरबियन नाइट्स, हाँ वही तो. हाँ बिल्कुल, अरबियन नाइट्स आजकल पढ़ी जाती हैं, और अरबियन नाइट्स के अब डिफरेंट टॉपिक्स में अब किताबें आ रही हैं, चीजों में आ रही हैं वो किताबें. जैसे फोक टेल्स अलग से एक है, स्टोरीज अलग से. पूरी दुनिया में एक जमाने में मतलब अभी रिसेंटली जो सबसे ज्यादा किताब छपी वो
وہ ہیری پوٹر کی تھی. جی بالکل بالکل. ہاں تو یہاں کچھ اس کا اثر رہا؟ بہت بہت زیادہ. میں نے اپنی لائف میں پہلی بار دیکھا ہے کہ جب ہیری پوٹر کی 4th سیریز ریلیز ہوئی سیم ڈے, کیونکہ وہ ورلڈ وائڈ کتاب جو ہے لانچ ہوئی ایک ہی دن پوری دنیا کے اندر, اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اسی روز ہمارے پاس بھی اویلیبل تھی, اور کتاب کی پرائس ان دنوں اس کی 1000 روپے تھی, 995 یا 999 ایسے ہی کچھ تھا. تو ایک دن کے اندر ہم نے کم سے کم 200 کتابیں ہمارے پاس آئی تھی. 170 12 گھنٹوں کے اندر کتاب جو ہے وہ ہمیں ختم ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں کا ریڈر ہے جی وہ ڈلنکڈ نہیں ہے دنیا سے, گلوبل ولیج ہے. جو پریارٹی پیرس میں ہے وہ پریارٹی سری نگر میں بھی ہوگی, دلی میں بھی ہوگی, لندن میں بھی ہوگی. بالکل بالکل. بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو سیم ڈے لانچ ہوئی, انڈیا میں بھی, کشمیر کے اندر بھی, پوری دنیا کے اندر. ایسی بات نہیں ہے. واجپئی صاحب کی کتاب آئی تھی سیم ڈے, انڈیا کے اندر بھی لانچ ہوئی اور کشمیر کے اندر بھی لانچ ہوئی. اس طرح کر کے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو سیم ڈے لانچ ہوتی ہے کتاب کشمیر کے اندر بھی اور ہندوستان کے دوسری جگہوں پہ بھی, دوسرے شہروں میں. ممبئی, دلی, مدراس, بڑے بڑے شہر جو ہندوستان کے ہیں وہاں پہ کتاب لانچ ہو رہی ہے, اور سیم ڈے ہم بھی اس کتاب کو لانچ کر لیتے ہیں کشمیر کے اندر. اعجاز صاحب, آپ نے اس سیریز کے کنکلوژن میں جو ہم نے آپ کی شراکت کے ساتھ کیا, اس کا آج کنکلوڈنگ ایپیسوڈ تھا, 31واں ایپیسوڈ, جس میں ہم نے ان ایشوز پر بات کی جو ایشوز یہاں کے آتھرس نے پچھلے 30 دنوں میں ہمارے ساتھ شیئر کیے. ہم نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن ہم نے ان کے جو احساسات تھے, ان کے جو امپریشنز تھے, پرسپیکٹیوز تھے اباؤٹ پبلشنگ سیکٹر, وہ آپ تک پہنچائے, کیونکہ آپ سب سے زیادہ کتابیں کشمیر کے حوالے سے پبلش کرتے رہتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ کنورسیشن رہی, گفتگو رہی, اور ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور بات کریں گے. تو تب تک کے لیے ہم ناظرین سے اجازت لیں گے, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شکریہ, بہت خدا حافظ. خدا حافظ.